اسماء حسنہ پر بات کروں گا، جو خاص اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف انبیاء اکرام کو تقسیم کیے تھے۔ اچھا، تو یہ خاص اسماء حسنہ ہیں جو چہل اسماء کہلاتے ہیں، جی، اسماء اربعین اس کو کہتے ہیں۔ یہ کل 41 ہے، 41 ہیں، اچھا، لیکن ان کا عنوان چہل اسماء کہلاتا ہے، یعنی 40 اسماء۔ یہ 40 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ اسماء عطا کیے تھے، ٹھیک، اور یہ اسماء اللہ نے اپنی اسم ذاتی کے طور پہ کیے تھے۔ یہ اللہ کا اسم ذات ہے جو ایک نبی کو دیا گیا تھا، اور اس نام کے ورد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی تربیت فرماتے تھے۔ تو لہٰذا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نیچے مخصوص بہت سے انبیاء جن میں یہ 40 اسماء تقسیم کیے گئے، ان کو اسماء اربعین کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے انبیاء کی تربیت ہوا کرتی تھی اور روحانی مراتب وہ طے کرتے تھے۔ تو یہ وہ اسماء ہیں، لہٰذا وہ ان کو اسماء ذاتی کے طور پہ دیے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے اور خاتم النبیین کا ٹائٹل آپ کو نصیب ہوا، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اسماء ذاتی، اسماء صفاتی کے طور پہ دیے، اور اپنا نام اللہ وہ اسم ذات کے طور پہ عطا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کو اسم جلالہ کہتے ہیں، جی، تو یہ اسم جلالہ جو ہے یہ اللہ، یہ اسم ذاتی کے طور پہ آپ کو دیا گیا، اور ان جو نبیوں کو ذاتی طور پہ دیے تھے وہ آپ کے لیے صفاتی طور پہ عنایت کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، تو یہ وہ اسماء ہیں، بڑی عجیب اس کی برکات ہیں۔ چنانچہ اس لیے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سر مکتوم کے اندر ان اسماء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر نبی کی یہ کوئی تقسیم کیے گئے، اور وہ نبی اس کا ورد کرتا تھا، اور وہ اپنے مراتب عالیہ پر آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، تو لہٰذا سب سے پہلا نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا۔ پہلے نبی، ہوا یہ کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو ان کے ساتھ سانپ کو اور اسی طریقے سے مور کو بھی نکالا گیا، کیونکہ سانپ اور مور کی ریشہ دوانی سے ہی ابلیس جنت کے اندر پہنچا تھا اور سارا وہ اغوا ہوا تھا، تو ان کو بھی زمین پہ پھینکا گیا۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پہ جب آئے تو بڑے افسردہ اور متاسف رہتے تھے کہ بھی جنت مجھ سے چھوٹ گئی، اللہ کی قربتیں چھوٹ گئیں، اب یہ دنیا کے جنگل بیابان میں، تو جنگلوں میں بیابان میں روتے زار و قطار روتے پھرتے رہتے تھے۔ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں جاؤں، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے آسمان سے زمین پہ گرا دیا۔ اسی آہوزاری کے اندر پھر رہے تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی آہوزاری ان کی پسند آ گئی، اپنی فضل و رحمت کرنے کا ارادہ کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 350 سال تک روتے رہے۔ اچھا، چونکہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 350 سال تک آدم روئے۔ جب فضل و عنایت اللہ کی ہوئی تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر مور پر پڑی۔ مور کے جو پر وہ مور پھیلاتا ہے نا، تو وہ خوبصورتی سے اس سے پر پھیلائے ہوئے، تو اس پروں پر جب نظر پڑی تو اس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر ایک خاص الہام پیدا ہوا، اور ایک قوت باطنیہ آپ کے اندر ظاہر ہوئی۔ اس قوت باطنیہ سے آپ نے اپنا وہ نام اخذ کر لیا، جو نام ابھی میں بتانے والا ہوں، وہ نام آپ نے اخذ کر لیا۔ جیسے وہ نام اخذ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے کیا ہوا کہ عالم بالا کے سارے پردے ہٹ گئے، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا اصل مقام نظر آ گیا جو ان کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ سبحان، اس کو دیکھ کے آدم علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو گئے کہ بھی اللہ نے مجھے جنتوں سے پھینکا تو ہے، لیکن نہیں، اللہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے ایسے نہیں رکھا، میرے لیے اللہ نے وہ مقام بنا رکھا ہے۔ تو مقام کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ اس کو بہت کثرت سے پڑھنے لگے، اتنی کثرت سے پڑھنے لگے کہ جو ملائکہ اللہ نے ان ناموں کے لیے متعین کر رکھے ہیں، ان ناموں کی خدمت کے لیے، ان ناموں کی جو ہے روحانی ترقی کے لیے، وہ ملائکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور ہر مشکل میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دینے لگے، اور ہر بات میں رہنمائی کرنے لگے، یہاں تک کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ان ملائکہ سے پوچھتے۔ اس طریقے سے وہ تعلق قائم ہو گیا، اور آدم علیہ السلام وہ اس کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسا نظم قائم ہو گیا کہ جب بھی دل کرتا تھا یہ افسردہ ہوتے تھے اس قربت سے دوری کی وجہ سے، تو یہ اس کا ورد کرتے تو عالم بالا پہ وہ مقام ان کو نظر آ جاتا تھا، وہ اس مقام کو اپنے دیکھ کے ان کو خوشی اطمینان ہو جاتا۔ یہ وہ نام ہے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے عطا کیا گیا، اور پھر انہوں نے جب کثرت سے پڑھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پرورش کی، ان کی روحانی پرورش اور ترقی کے مدارج اس نام کی برکت سے طے ہوتے چلے گئے، اور وہ نام ہے سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثہ و رازقہ
वराहिमहु या सुबहानु। सुभान अल्लाह। अगर ये हमारी टीम वाले स्क्रीन पे दिखा सकते हो तो स्क्रीन पे भी दिखाया जा सकता है ताकि लोगों को आसान हो, क्योंकि लंबा नाम है। सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, जैसे है ना ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो सुबहानका पहले है, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता, फिर उसके बाद या रब्बा कुल्ल शैइन व वारिसहु व राज़िक़हु व राहिमहु या सुबहानु, कि ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, या रब्बा कुल्ली शई, हर चीज़ को ए पालने वाले, व वारिस और ए हर चीज़ के वारिस, व राज़िक़ और हर चीज़ का को रिज़्क़ देने वाले, व राहिम और हर चीज़ पर रहम करने वाले। उसके बाद के या सुबहानु, ए पाकज़ात। सुभान ये वो मुबारक नाम है जो आदम इस्लाम को मिला और उनकी अल्लाह ने परवरिश की, और इसके बड़े अजीब व गरीब फ़ज़ाइल हैं। और ज़ाहिर है कि मैं ये समझता हूँ कि ये नाम हर पैगम्बर को बतौर इसमें आज़म मिला, तो ज़ाहिर है उससे उनके तरीक़े मदारिज हुए। इसके बड़े फ़वाइद हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि कोई दीनी या दुनियावी कोई भी आपकी मुहिम, कोई हाजत, कोई मुश्किल आपको दरपेश है, तो आपने इसका विर्द शुरू करना है इतवार के दिन से। इतवार के दिन तुलुए शम्स के वक़्त, जैसे तुलुए शम्स होता है, तुलुए शम्स के वक्त ज़ाहिर है कि नमाज़ पढ़ना मना है, ज़िक्र की इजाज़त होती है, उस वक्त आपने इसका विर्द शुरू करना है। और ये 24 टाइम पढ़ना है, अच्छा 24 टाइम पढ़ना है, और अव्वल आखिर एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, अच्छा और उसको बिस्मिल्लाह मिला के पढ़ना यूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। उसके बाद ये इसका विर्द करना 24 टाइम। विर्द करने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। ये मुकम्मल करने के बाद अब हाथ उठा के दुआ करनी है। दुआ के अंदर ज़ाहिर है कि सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, और दुरूद शरीफ के वसीले से अल्लाह से अपनी हाजत मांगनी है। तो ये आप 41 डेज़ की नीयत से शुरू करेंगे, किसी भी किस्म की हाजत और ज़रूरत होगी अल्लाह गैब से पूरी कर देंगे। सुभान अल्लाह। भले दीनी ज़रूरत हो, भले दुनियावी ज़रूरत हो, ज़बरदस्त आपको जिसका समरा नज़र आएगा। सुभान ये इसका फ़ायदा। वाह। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर इंसान की जो पेशी है हाकिम वक़्त के सामने, या बादशाह जो है वो सलामत के सामने, या ये कि यानी काजी अदालत के सामने पेशी है, या किसी बड़े के सामने पेशी है, और ख़तरा है कि वो आप पर नाराज़ होगा, या ऑलरेडी आप पे नाराज़ और आप उसे बुला लिए, तलबी कर लिया, आ जाओ, अब आप परेशान हैं, तो कोई परेशान न हो, ये ज़बरदस्त ये इसमें इसका विर्द करें। इसका विर्द अव्वल आखिर सूरह फातिहा का, ये याद रखें इन असमा में अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, अच्छा एक एक मरतबा। हाँ, दुरूद शरीफ दुआ के अंदर आप पढ़ेंगे, विर्द के अंदर आप नहीं पढ़ेंगे। तो अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़ के दरमियान में आपने ये इसम 21 टाइम पढ़ना है। 21 टाइम पढ़ के तसव्वुर में उस बादशाह की तरफ फूंक दें, या ये कि अगर वहाँ पहुँच गए और सामने वो है तो चुपके से उसकी तरफ दम कर दें, तो दी बेस्ट। करने के बाद अब आप पेश हो जाएं, अब हैरान हो जाएंगे कि जो आदमी इतना वसीला था आप पर मेहरबान हो जाएगा। इसके अंदर ये तासीर। और तीसरी तासीर ये कि आप चाहते हैं कि मेरा क़ल्ब और बातिन मुनव्वर हो जाए, तो आप रोज़ाना का 41 मरतबा का विर्द इसका जो पक्का कर लें। किसी भी एक नमाज के बाद या तन्हाई का वक्त रख लें, अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा के साथ आपने ये 41 टाइम पढ़ना है, और पढ़ के अपने सीने पे दम करना है और दुआएं खैर कर लेनी है। ये आप जो है 41 डेज़ ही की नीयत से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह 41 दिन में अल्लाह तबारक व तआला आपके बातिन को मुनव्वर कर देंगे, और आप उस अनवारात को महसूस करेंगे। ये अजीब इसकी तासीर। और एक तासीर ये कि अगर आपका महबूब या मतलूब सरकश है, बागी हो गया है, आपकी बात नहीं सुनता, इताअत नहीं करता, अब आप उसका अपना मुती और ताबेदार करना चाहते हैं, इसकी ज़बरदस्त तासीर, कमाल की तासीर। उसका तरीक़ा ये है कि बुध के दिन आप नहीं करना है, वेनसडे को दिन में कोई भी वक्त रख लें, चाश का वक्त रख लें, ज़ोर के बाद का वक्त रख लें, तो दिन में आपने जो है गुस्ल करना है। गुस्ल करके नए कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है, और जिस माहौल में आपने पढ़ना वहाँ ये खुशबू फैला दें, ऊद जला लें, अंबर जला लें, या ये कि वो अगरबत्तियाँ जला, खुशबू माहौल में होनी चाहिए। उसके बाद किबल रुख आप बैठ जाएँ। अब आपने इसको पढ़ना है, पढ़ना आपने 121 मरतबा, 121 टाइम, 121 टाइम पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप खाने पीने की कुछ चीज़ अपने सामने रखें, उसके ऊपर दम कर दें। वो चीज़ किसी भी तरीके से उस मतलूब या महबूब को पिला दें, खिला दें। फिर आप तमाशा देखें
इंशाल्लाह अब आप महबूब होंगे, वो आशिक होगा। ऐसी तासीर, कमाल की तासीर। तो ये अमल करें, और ये जो आप 11 दिन के अंदर ही आप कामयाब हो। अव्वल तो एक ही दफ़ा काफ़ी होता है, लेकिन 11 दिन इसका मैक्सिमम है। 11 दिन के अंदर इंशाल्लाह मतलूब और महबूब जो है आपका दीवाना हो जाएगा, और वो सरकशी किसी भी किस्म की वो छोड़ देगा। जैसे औलाद आजकल नाफरमान है, तो नाफरमान औलाद के लिए आप कर लें, औलाद को खिला दें, सारे ताबेदार हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि आपका मीरास का माल दूसरे कोई वारिस है, वो कब्ज़ा करके बैठ गए, वो आपको दे नहीं रहे। बड़े भाई ने कब्ज़ा कर लिया मसलन, या चचा दबा के बैठ गया, अब बाप की मीरास आ गया, आपको बांट नहीं रहा। या ये कि आपका माल किसी के पास अमानत है, वो अब देने में टाल मटोल कर रहा है, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीका ये कि या तो रोज़ का ख़त्म 21 डेज़ करना होगा, तो ख़त्म की शक्ल में करें। अकेला अगर नहीं पढ़ सकता तो चंद लोग मिल के जो है इसका ख़त्म करें, और वो पढ़ा जाएगा 5000 मरतबा, 5000 जी जी 5000 मरतबा पढ़ा जाएगा। हर बंदा पढ़ने से पहले अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेगा, और दरमियान में इसका भी शुरू कर देगा। लिहाजा अपनी अपनी तस्बीहों के हिसाब से जो है वो 5000 विर्द पूरा करके उसके बाद दुआ कर लें। ये 21 डेज़ की नीयत से आपने शुरू करना है, लेकिन आप देखेंगे उससे पहले ही आपका हक जो है वो जो गासिब जालिम है आपको पहुंचा देंगे। सुभान ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये कि आप तस्खीर सलातीन चाहते हैं, बादशाह वक्त मेरा मुस्तखर हो जाए, या साहिब मनसब लोग मेरी बात सुने हैं, वो मैं जो कहूँ वो करें, ताबे हो जाएं। लेकिन उसमें ये ज़रूर रखें कि खिलाफ शरीयत और खिलाफ जो है वो सुन्नत कोई अमल नहीं होना चाहिए। यानी जायज़ मकसद हो कि आप सुल्तान को इसलिए अपने ताबे करना चाहते हैं ताकि मेरी खैर की बात को लेके प्रमोट करे, मेरी खैर की बात को, मुल्क को मिल्लत की बेहतरी के काम करे। ये नीयत हो, ये नहीं कि आप अपने ज़ाती मफादात की खातिर उस पर कोई कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, या खुदा न खास उसको नाजायज़ रास्ते पर लगाना चाहते हैं। इस किस्म की नीयतों से बचें, वरना बस औक़ात इन नामों की रजत भी हो जाती है, वो इंसान के नुकसानदेह है। इसलिए उसका तरीका यह है कि आप ये नाम एक चांदी की अंगूठी पर कंधा करवाएंगे, एक चांदी की अंगूठी, उसके ऊपर तख्ती पे यह नाम लिखवाएंगे। ठीक, लिखवाने के बाद 21 डेज़ तक, 29 दिन तक रोज़ाना 41 मरतबा आप इस नाम का विर्द करके उस अंगूठी पे 3 मरतबा दम किया करेंगे, और उसको महफूज रख दिया करेंगे। 21 डेज़ तक आप इसी तरीके करेंगे, ये पूरी दुआ इस तरह दम करके रखेंगे। 29 डेज़ के बाद आप वो अंगूठी निकाल के बिस्मिल्लाह करके पहन लेंगे। पहन के अब बादशाह के पास जाएं, किसके पास जाएं, इंशाल्लाह तस्खीर आपके हाथ में। सुभान सुभान ये तस्वीर सलातीन इंशाल्लाह ऐसा इसमें आज़म साबित होगा कि वक्त का सुल्तान हो या अवाम हो, वो आप ये तस्खीर के काबू में होगी, और इंशाल्लाह आपकी खैर की बात के लिए नाफी हो जाएगा। तो ये है, तो अंगूठी कंधा करके उस पर। और अंगूठी के बारे में आप जानते हैं कि अगर मर्द है तो मर्द 5 माशा जो है से ज़्यादा बड़ी भारी अंगूठी नहीं पहन सकता। लिहाजा 5 माशे तक की अंगूठी हो, उसके ऊपर कंधा करके पहन ले। औरत के लिए कोई शर्त नहीं, और जो जितनी भारी अंगूठी बनवाए उसके ऊपर कंधा करके पहन ले, उसकी शर्त। लेकिन मर्द के लिए चांदी 5 माशा तक के लिए, और सोना जो पहनने की मर्द को इजाज़त नहीं है। ये शरई मसला भी नोट रखें। तो 5 माशे तक की अंगूठी बनवाएं, उसके ऊपर ये कंधा करवा लें। 29 डेज़ तक 41 दफ़ा पढ़ के दम करें, दुआ खैर मांगते रहें, और अव्वल आखिर सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़नी है, और उसके बाद 29 दिन बिस्मिल्लाह करके पहन लें, और फिर आप मैदान में उतरें। इंशाल्लाह मैदान आपका है। सुभान अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकत हम सबको नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।